So which activity we need to do here? Are you able to see my screen first of all? Yes, sir. Okay, fine. So which activity we need to do? 3 point. Which activity we need to do? This one activity, test the shipping cost formulas activity is completed. So how the formulas are working, like by using offset and post, how we are differentiating our line items by different line items, confirm PO delivery and confirm purchase order receipt, how it is differentiating by using offset and post function. We have seen these differences. Yes, we completed this activity. So what is the difference between the post and offset function also we covered each and everything. So now we need to complete this activity, add DCA to inventory ordering module. So what is DCA? Already we covered in level 2 sprint 2 we completed one activity regarding DCA, dynamic cell access. So do you remember this what? Yes, Show sir. screen. Yes. Are you able to see my screen? Yes, sir. Okay, fine. So do you remember what is DCA, dynamic cell access, and how we are applying? Yes, sir. So first to apply any line item dynamic cell first We can control the line item with the access of read and write. by creating this DCA, dynamic cell access, by using dynamic cell access we can control each and every line item of module we can control by giving this Yes, sir. DCA. So first of all, what should we do? We should create access driver module here. Create inventory ordering override module. Access driver module we should create. So this access driver module we should apply to each and every line item of wherever we want to apply. So then that line item will get control. So first of all, before applying DCA, so to any line item, what should we do? We should create access driver module. Is it fine? So last time where we applied here this DCA, for which case we applied? We can सिचुएशन में यूज करें यार DCA कौन सा सिचुएशन? ओवरराइड करने हैं एक्सेस देना या नहीं देना केस पे है। कुछ एक्स्ट्रा ओवरलाइड कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पे नॉर्मल डिमांड से कुछ एक्स्ट्रा जो है एक्स्ट्रा ऑर्डर करना चाह रहे हैं ऑन द बेस ऑफ रिक्वायरमेंट। वो सिचुएशन में क्या करें, उसको वहाँ पे अप्लाई करके ओवरराइड अप्लाई करके वहाँ पे एडजस्ट करिए लाइन आइटम डीसी अप्लाई करके वहाँ पे अपने हिसाब से जो है चेंजेस कर सकते डीसी अप्लाई करने से। तो इसके यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। ओवरराइड यानी पहले जो भी वैल्यू है उसको कट करके दूसरा एक्स्ट्रा ऐड करने को ओवरराइड बोलते। So you can see here, create inventory ordering override modules. So we are creating an override module we are creating. So in supply chain model, create new access driver module. New access driver module we need to create first of all. After creating this module, we can use this module to different line items. That is a secondary. First of all, we need to create access driver module. You can see here, my module name is add 0 to inventory ordering module. You can see here, first of all you copy this one, first of all you should copy, yes, so we should copy this one, add inventory overriding. Then after adding module, what is the dimensions, what are the dimensions we have? P3 SQL list time in weeks. So we should keep dimension P3 SKU list
and time in weeks. So week we can check later, either it is week or months we can see later. Now it is not possible. So you can see here functional area also we can change, we can later. So these three line items, first of all we need to add to the our module. You can see here submit purchase order for write. So you can see I am adding one line item and I am adding another line item. Override amount, for these three line items we want to control here actually. Okay na, these three line items we want to override shipping, override amount, submit purchase order, submit purchase order or not. So this line item we need to control actually. So that is the reason we are inserting these line items. ये लाइन आइटम्स कुछ कंट्रोल करना है अपने, इसके लिए यही लाइन आइटम ऐड कर रहे. अगर दूसरा लाइन आइटम कंट्रोल करना है तो क्या करते थे यार, वो लाइन आइटम ऐड करते थे. ठीक है ना. सो आर यू फाइन, वी आर एडिंग दिस थ्री लाइन आइटम्स. ये थ्री लाइन आइटम्स ही क्यों ऐड कर रहे हैं अपन? We are controlling this line item, that's why we are adding this. So we are controlling these three line items, that is why we are inserting these three line items. ठीक है ना. so, किसको कंट्रोल करना है? वो लाइन आइटम को जो है राइट, यानी राइट 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 राइट. रीड एंड राइट का डिफरेंस क्या रहता है यार? कभी भी एनाप्लान के अंदर एक्सेस देने के टाइम पे अपन अगर रीड दिए तो क्या डिफरेंस रहता, राइट दिए तो क्या डिफरेंस? रीड राइट में जो है कुछ भी है अपन जो है एडिट कर सकते हैं. रीड में जो है सिर्फ रीड कर सकते. रीड कर सकते हैं, उसमें एडिट नहीं कर सकते. वही डिफरेंस है रीड एंड राइट के अंदर. ठीक है ना. हर जगह वही कॉन्सेप्ट है. सेलेक्टिव एक्सेस के अंदर है या फिर आप उसके अंदर जो रोल्स सेट कर रहे हैं वहाँ पे, हर जगह रीड एंड राइट एक्सेस सेट करने का रहता. रीड एंड राइट का मतलब वही रहता. आर यू फाइन अदर्स, ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. सो यू कैन सी हियर नेक्स्ट, ये जो एक्सेस ड्राइवर मॉड्यूल क्रिएट करा. सो आफ्टर एक्सेस creating access driver module, what should I do? I should format these three line items. So you can see each and every line item should be, format of each and every line item should be boolean. So I should change each and every line item format from number to boolean. I should change. Yes, I changed this format of line items. Then what should I do? You can see here. So add read and write access drivers to inventory ordering module to set up dynamic cell access to perform as shown in the example below. So you can see here this inventory ordering access driver module, whatever we have, read and write access driver to inventory ordering module to set up dynamic cell access to perform as shown in the below example. So we need to apply these line items to this access driver module to our module, inventory ordering module. So how it happens, you can see here. First of all, after creating the module, we need to apply formula to this line item. Okay na. First of all, we need to write formulas to this module. Then according to formula it will works. So what should I do? We need to apply formulas.
एना प्लान के अंदर क्या है, फार्मूला के हिसाब से ही काम करता कौन सा भी मॉड्यूल। फार्मूले के अंदर जो भी हम रेफरेंस दे रहे उसके हिसाब से डेटा पुल करता आपको, और फार्मूले के ऊपर ही पूरा डिपेंड रहता। ठीक है ना यार। तो फार्मूलेस को जो है फंक्शंस एंड फार्मूलेस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता डेटा को पुल करने के अंदर, और उसको किधर भी एडजस्ट करने के लिए भी जो है ये इंपॉर्टेंट रोल रखता, फंक्शंस एंड फार्मूलास। सो इसके अंदर हम देख सकते हैं सबमिट परचेस ऑर्डर रिक्वेस्ट के लिए, इसको सबमिट परचेस ऑर्डर रिक्वेस्ट के लिए कौन सा फार्मूला लिखे यार? सिंपल फार्मूला है, कुछ भी नहीं है ये फार्मूला। यानी क्या कर रहा है, इन्वेंट्री ऑर्डरिंग मॉड्यूल के अंदर सबमिट परचेस ऑर्डर रिक्वेस्ट है या नहीं है चेक कर रहा। मॉड्यूल के अंदर जा रहा, मॉड्यूल डॉट लाइन आइटम नेम सबमिट परचेस ऑर्डर रिक्वेस्ट। सो यानी क्या कर रहा है यहाँ पे, इट इज गोइंग इन्वेंट्री ऑर्डरिंग मॉड्यूल डॉट सबमिट परचेस ऑर्डर रिक्वेस्ट, यानी मॉड्यूल नेम कामा डॉट लाइन आइटम नेम। तो सीधा सीधा जो है चेक कर रहा हूँ उसके अंदर अगर सबमिट परचेस ऑर्डर रिक्वेस्ट रहा तो इन क्या करता है, ये फार्मूला लिखने से क्या होता है यार, उसके अंदर अगर ओके रहा, ट्रू रहा तो फिर यहाँ पे ट्रू करता है, नहीं तो ट्रू नहीं करता। ठीक है ना यार। यानी इसके अंदर क्या कर रहा, इन्वेंट्री ऑर्डरिंग मॉड्यूल का चेक कर रहा है। इसके अंदर इन्वेंट्री ऑर्डरिंग मॉड्यूल का जो इसके अंदर जो है सबमिट परचेस ऑर्डर रिक्वेस्ट यहाँ पे अगर ट्रू है तो यहाँ पे जो है इसके अंदर ट्रू करता बस। इसके अंदर हम यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन सी हियर डिफरेंस। वहाँ पे जो है एक जगह टिक है तो यहाँ पे क्या कर रहा, एक ही जगह शो कर रहा तुम्हारा को, दूसरी जगह जो है नहीं करता आपको। क्यों नहीं कर रहा शो यहाँ पे, क्यों नहीं कर रहा यार? अपन कहाँ से रेफरेंस लिए इसका, ये फार्मूला का रेफरेंस कहाँ से लिया हम? इन्वेंट्री ऑर्डरिंग मॉड्यूल के अंदर सबमिट परचेस ऑर्डर रिक्वेस्ट देखने के लिए बोले, तो अगर यही देख के जो उन काम करता, दूसरा कुछ भी नहीं मालूम है इसको। ये मॉड्यूल के अंदर जो है मैं अगर दो तीन जगह मैं ट्रू कर दिया चेक बॉक्स को, ये मेरा वो फार्मूला के अंदर ऑटोमेटिक क्या होता, यहाँ पे जो है जितने वहाँ पे ट्रू रहेंगे ये मॉड्यूल के अंदर, इन्वेंट्री ऑर्डरिंग मॉड्यूल के अंदर, उसके हिसाब से जो है मेरा आगे बढ़ते रहता। ठीक है। वहाँ पे अगर ट्रू रहा तो ट्रू रहता, इसका मतलब। ठीक है ना यार। तो खैर जो है ये हो गया आपका फर्स्ट फार्मूला हो गया। नेक्स्ट दूसरा लाइन आइटम का देखेंगे। सो सेकंड लाइन आइटम का फार्मूला क्या है, ऑर्डर ओवरराइडिंग शिपिंग राइट। शिपिंग राइट का जो है ओवरराइड करना है, ओवरराइड शिपिंग राइट। ये भी सेम प्रोसीजर है, इसके अंदर भी कुछ भी फर्क नहीं है। यू कैन सी हियर, ये भी जो है इसके अंदर सीधा सीधा जो है ओवरराइड शिप करना है नहीं करना है। तो यहाँ भी वही चीज़ देखता हूँ, वहाँ पे इन्वेंट्री ऑर्डरिंग मॉड्यूल में जाके ओवरराइड शिपिंग मेथड करे नहीं करे, और कर रहे तो ट्रू देता, नहीं कर रहे तो क्या करता, फॉल्स दे देता, यानी कुछ भी नहीं देता। ये भी सेम जो है चेक, वहाँ जाके चेक कर रहा, फिर उसके बाद रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे। ये भी सेम प्रोसीजर है। एंड नेक्स्ट जो है थर्ड लाइन आइटम क्या है आपका, व्हाट इज द थर्ड लाइन आइटम? ओवरराइड शिपिंग के बाद जो है ओवरराइड अमाउंट। ओवरराइड अमाउंट भी सेम प्रोसीजर है। इसके अंदर थोड़ा लेंथी है ओवरराइड अमाउंट का, दो तीन चीज़ें इन्वॉल्व हो। इफ देन एल्स स्टेटमेंट यूज करके जो है ये लाए, कैसा लाए ये देखेंगे हम। ये मैनुअली करना पड़ता।
अमाउंट ओवरराइड करना है नहीं करना है। तो इसके लिए जो है क्या कर रहे हैं यार, कंडीशन क्या दे रहे हैं, इफ इन्वेंट्री ऑर्डरिंग सबमिट परचेस ऑर्डर रिक्वेस्ट एंड इन्वेंट्री ऑर्डरिंग ओवरराइड सजेस्ट ऑर्डर अमाउंट देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। यानी जो है इसके अंदर अमाउंट अगर ज़्यादा हुआ नहीं हुआ, कैसा मालूम होना अपने को, ओवरराइड अमाउंट रिक्वेस्ट भी रहना है, सबमिट परचेस ऑर्डर रिक्वेस्ट के लिए रेस करना है, एंड इन्वेंट्री ऑर्डरिंग के अंदर ओवरराइड सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट, यानी ओवरराइड भी करके रहना है आप। यानी नॉर्मल डिफ़ॉल्ट मेथड नहीं है, ओवरराइड मेथड है। वो सिचुएशन के अंदर क्या होता, ये जो है एक्स्ट्रा अमाउंट जो भी है आता, अगर सिचुएशन वो नहीं रहा तो क्या होता, ऑटोमेटिक जो है डिफ़ॉल्ट रहता। यानी उसके अंदर जो है कोई ओवरराइड अमाउंट डालने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा अमाउंट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए इफ़ इन्वेंट्री ऑर्डरिंग मॉड्यूल के अंदर गए, सबमिट परचेस ऑर्डर रिक्वेस्ट चेक करें। यहाँ पे दो कंडीशन यूज़ कर रहे हैं यार, सबमिट परचेस ऑर्डर रिक्वेस्ट चेक कर रहे हैं एंड ओवरराइड सजेस्ट ऑर्डर अमाउंट भी चेक कर रहे। दो कंडीशन ट्रू रहा तो देन ट्रू है, अदरवाइज क्या है, एल्स फॉल्स है। तो इसके अंदर जो है क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले जो है इन्वेंट्री ऑर्डरिंग मॉड्यूल के अंदर चले गए। इन्वेंट्री ऑर्डरिंग मॉड्यूल के अंदर क्या करें, सबसे पहले जो है सबमिट परचेस ऑर्डर रिक्वेस्ट क्या रहना अपना, ट्रू रहना, ठीक है ना। सबमिट परचेस ऑर्डर रिक्वेस्ट ट्रू रहना। नेक्स्ट क्या रहना अपना, एंड सबमिट परचेस ऑर्डर रिक्वेस्ट के बाद क्या रहना यार, और एक कंडीशन क्या है अपना, सबमिट परचेस ऑर्डर रिक्वेस्ट के बाद ओवरराइड सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट भी ट्रू रहना। रिक्वेस्ट एंड फिर क्या करेंगे हम, एक एंड ऐड कर लेना, एक रिक्वेस्ट हो गया एंड ओवरराइड सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट, ये भी जो है ट्रू रहना आपका, ठीक है। सर पहले इफ ऐड करा, क्या कर रहे हैं, इफ ऐड नहीं करा सर। अरे इफ ही ऐड नहीं कर रहे यार, इफ तो मेन है अपना। इफ तो जो है मेन है अपना। इफ इन्वेंट्री ऑर्डरिंग सबमिट परचेस ऑर्डर रिक्वेस्ट, देखो यहाँ पे असल में सिचुएशन क्या है, यहाँ पे जो है सबमिट परचेस ऑर्डर रिक्वेस्ट ट्रू रहना, ओवरराइड सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट ट्रू रहना। ये दो सिचुएशन में तुम्हारा क्या होता, ओवरराइड अमाउंट रहता। अगर सजेस्ट ओवरराइड नहीं कर रहे तो तुम्हारा एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ होता क्या, यहाँ पे कुछ है क्या, ओवरराइड अमाउंट कुछ है यहाँ पे, अच्छा दूसरी जगह है यार यहाँ पे, नहीं सर, नहीं, नो। ओवरराइड सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट नहीं है। तो यानी ओवरराइड नहीं कर रहे तो जो बेसिक है वही रहता, जो डिफ़ॉल्ट है सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट जो डिफ़ॉल्ट है वही रहता। जब ओवरराइड कर रहे तो इरेज करके आपको कुछ एक्स्ट्रा डाल रहे तो ओवरराइड अमाउंट रहता। इसके लिए जो है सबमिट परचेस ऑर्डर रिक्वेस्ट रहना एंड ओवरराइड सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट भी रहना, दो भी रहा तो हमारा ट्रू रहता। देन क्या होता, इफ के बाद दो कंडीशन ऐड करें, वन कंडीशन एंड टू कंडीशन, वन एंड टू कंडीशन ऐड करें, देन क्या है, ट्रू है, देन ट्रू है, अदरवाइज एल्स क्या False. है, फॉल्स है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो है अपना दो भी कंडीशन कंप्लीट हो जा रही। सो दो कंडीशन के बाद देन ट्रू एल्स फॉल्स, अदरवाइज अपने को फॉल्स आना है। ये हो गए आपके दो भी कंडीशंस। ये हो गया आपका फार्मूला, यानी ये कंडीशंस जो है आप सेट कर रहे, जो कंडीशन अपने को होना है पूरा सेट करें। सेट करने के बाद क्या कर रहे हैं हम, so when creating override shipping, write override amount
line write line item and add 0 to inventory ordering override module. Make sure these boolean formatted line items are structured so that if the end user decide not to place the order, so all relevant to fields will return to hidden as it in the week 1 example above. Override amount line item is true checked when submit purchase order request and override suggested order amount are true or checked. इसके अंदर क्या है, अमाउंट के वास्ते जब देख रहे थे क्या रहना अपने को, सबमिट परचेस ऑर्डर रिक्वेस्ट यानी वो तो डायरेक्ट देखता है, उसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है, सीधा सीधा जो है आपको सबमिट परचेस ऑर्डर रिक्वेस्ट यहाँ रहा तो फिर वहाँ पे भी जो है सबमिट परचेस ऑर्डर रिक्वेस्ट कर देता हूँ. ये हो गया. नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट लाइन आइटम क्या है, ओवरराइड सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट. ओवरराइड सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट का मेन है ये देखो. तो इसके अंदर जो है लॉजिक क्या है, सेकंड ओवरराइड सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट के अंदर ओवरराइड, इसके अंदर जो है ओवरराइड अमाउंट के अंदर लॉजिक क्या है, ओवरराइड अमाउंट के अंदर क्या क्या ट्रू रहना यार. अभी हम देखें, हम लास्ट फाइनल वाला क्या क्या ट्रू रहना ओवरराइड अमाउंट के लिए. सबमिट परचेस ऑर्डर रिक्वेस्ट एंड सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट ट्रू रहना, यानी यहाँ पे जो है ये दो ट्रू रहा तो फिर आपका जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट लग रहा, ओवरराइड अमाउंट लग रहा लगता. यहाँ भी देखो फर्स्ट रिक्वेस्ट एंड ओवरराइड सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट दो भी ट्रू है, देन हम कुछ ना कुछ जो है एक्स्ट्रा ओवरराइड अमाउंट डालते. ठीक है ना यार. यस सर. ये यहाँ पे सबमिट परचेस ऑर्डर रिक्वेस्ट ट्रू है, ओवरराइड सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट ट्रू नहीं है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है आपको. ठीक है ना. यानी ये फार्मूला सेट करने के बाद क्या करते हैं हम, अप्लाई करते हैं तीनों लाइन आइटम को. अप्लाई करने के बाद अपने को ये पूरा जो है दिखता कैसा, अपने को यहाँ पे जैसा है ना पूरा वो फॉर्मेट में हम हमारा लाना है. नेक्स्ट जो है ये सेकंड लाइन आइटम हो गया. सेकंड लाइन आइटम यानी ओवरराइड अमाउंट के लिए कंडीशन ये है देखो, दो ट्रू रहा तो ट्रू, दो ट्रू रहा तो सबमिट परचेस ऑर्डर रिक्वेस्ट एंड सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट ट्रू रहा तो फिर आप यहाँ पे एडिट कर सकते, ओवरराइड अमाउंट आप एडिट कर सकते ओवरराइड अमाउंट लाइन आइटम के लिए. यहाँ पे ये कंडीशन सेट करें, ये दो ट्रू रहा तो आप यहाँ एडिट कर सकते. यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, आपको कुछ लिखने का ऑप्शन नहीं दिख रहा कहीं भी, सिर्फ यही दो लाइन आइटम को दिख रहा है. ये हो गया. नेक्स्ट क्या है, ओवरराइड शिपिंग लाइन आइटम के लिए मेरे को ओवरराइड करना है. ओवरराइड शिपिंग मेरा कब चांस देता, ओवरराइड शिपिंग मेरे को यहाँ पे जो है लिखने का चांस देना ओवरराइड शिपिंग मेथड के लिए. तो यहाँ पे जो है मैं एडिट कर सकना. इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए कंडीशन क्या है, फार्मूला में क्या लिखे हम, ओवरराइड सबमिट व्हेन सबमिट परचेस ऑर्डर रिक्वेस्ट ट्रू रहना है, सबमिट परचेस ऑर्डर रिक्वेस्ट ट्रू है, व्हेन सबमिट परचेस ऑर्डर एंड ओवरराइड शिपिंग मेथड यानी देखो ओवरराइड शिपिंग मेथड ये भी ट्रू है. दो ट्रू रहा तो फिर आपको यहाँ पे एडिट कर सकते, ओवरराइड मेथड को आप चेंज कर सकते. नहीं है तो क्या कर सकते आप, कहीं भी जो है कितना भी करो कंट्रोल नहीं कर सकते, आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते यहाँ पे दूसरे जगह. ठीक है ना यार. कैसा हो रहा है यहाँ पे कंडीशन जो है, सबमिट परचेस ऑर्डर रिक्वेस्ट एंड ओवरराइड शिपिंग मेथड रहा तो दो ट्रू रहा तो फिर आप क्या कर सकते, ओवरराइड शिपिंग मेथड को जो आप कुछ भी एडिट कर सकते, नहीं तो फिर आप नहीं कर सकते. ठीक है ना. तो उसके बाद क्या करना, ये तीन जो है लाइन आइटम के वास्ते फार्मूला हम सेट करें, इसके बाद हम देखेंगे कैसा होता, कैसा वर्क करते ये देखो. अब ये लोग जैसा करें अपन अपना भी पूरा वैसे करेंगे. ठीक है ना यार. ये लोग के पास जो है जैसा स्क्रीन है उसके हिसाब से हम मैच करेंगे. उसके अंदर क्या कर रहे हैं लोग, सबसे पहले क्या कर रहे हैं यार, फर्स्ट क्या करना, हाइलाइटर
add DCA to इन्वेंट्री ऑर्डरिंग. सो क्या क्या करना पहले, ऐड रीड एंड राइट एक्सेस ड्राइवर टू इन्वेंट्री ऑर्डरिंग मॉड्यूल टू सेटअप डायनेमिक सेल एक्सेस टू परफॉर्म एज शोन इन द एग्जांपल बिलो. यानी क्या करना, हम सबसे पहले ये रीड एंड राइट एक्सेस. इसके अंदर जो है अपन ये ड्राइवर मॉड्यूल को ऐड कर देना इन्वेंट्री ऑर्डरिंग मॉड्यूल के अंदर. सो रीड एंड राइट एक्सेस ड्राइवर मॉड्यूल जो है ऐड कर देना एक एक लाइन आइटम के लिए. कौन सा लाइन आइटम कंट्रोल करना है हमारा को, सबमिट परचेस ऑर्डर. रिक्वेस्ट. सबमिट परचेस ऑर्डर रिक्वेस्ट के लिए कौन सा करना, ऐड इन्वेंट्री ऑर्डरिंग सबमिट परचेस ऑर्डर राइट. ये जो है इसको सेट कर दिया, सबमिट परचेस ऑर्डर रिक्वेस्ट के लिए सेट कर दिया. अब नेक्स्ट क्या है मेरा, नेक्स्ट लाइन आइटम का कौन सा है, नेक्स्ट लाइन आइटम कौन सा है यार मेरा, ओवरराइड. अमाउंट. ओवरराइड अमाउंट हो गया. ऐड 0 टू इन्वेंट्री ऑर्डरिंग ओवरराइड अमाउंट, ये हो गया. देन फाइनल क्या है, ओवरराइड शिपिंग मेथड. मेरा शिपिंग मेथड का क्या है, मेरा शिपिंग मेथड का से हम कुछ क्रिएट करें नहीं करें, ओवरराइड मेथड कर रहे हैं सर. करें ना, ये तीनों के लिए लाइन आइटम के लिए क्रिएट करें. राइट एक्सेस ड्राइवर ओवरराइड शिपिंग मेथड पे नहीं करे सर. ओवरराइड शिपिंग मेथड में नहीं करे, करे यार. शिपिंग मेथड ओवरराइड मेथड वही है ना, अभी तक जो करे क्या करे वही करे. आपका तीसरा लाइन आइटम क्या था उसमें, एक्सेस ड्राइवर में आपका वही है ना, ओवरराइड शिपिंग मेथड ही चाहिए. ये ओवरराइड शिपिंग बोल के है, मेथड बोल के नहीं है, बस उतना ही चाहिए, यही चाहिए ओवरराइड शिपिंग, वही चाहिए थर्ड वन. ठीक है, उसमें ओवरराइड बोल के है और ओवरराइड शिपिंग मेथड बोल के है. वही चाहिए जी. ओवरराइड शिपिंग को ओवरराइड कर रहे, ओवरराइड शिपिंग मेथड को ओवरराइड कर रहे, अमाउंट को ओवरराइड कर दे रहे. ये दो चीज़ें हैं, दो एक ही है, मेथड नहीं है. शिपिंग ओवरराइड शिपिंग यानी वही है, ओवरराइड शिपिंग मेथड ही चाहिए. ये दो, ये सब जो है अप्लाई कर दिए, ठीक है ना, ये पूरा अप्लाई कर दिए, तीनों लाइन आइटम के लिए अप्लाई करें. अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट क्या करना, हम अप्लाई करने के बाद क्या करना है, नेक्स्ट हाइलाइटर कुछ जो जैसा वो कंडीशन जो सेट करो बोल रहे, उसके हिसाब से हम सेट करेंगे. क्या क्या कंडीशन है, फर्स्ट क्या करेंगे. सो सबमिट परचेस ऑर्डर रिक्वेस्ट वीक 2, 3, 4 के लिए जो क्या करना, हम वीक 2, 3, 4 के लिए टिक करेंगे सबमिट परचेस ऑर्डर रिक्वेस्ट. सबमिट परचेस ऑर्डर रिक्वेस्ट कौन सा वीक में रहना यार, 2, 3 एंड ऑलरेडी जो है फार्मूला ले लिया ना यार. फार्मूला जो है करने से पहले वो कर देना, 1 मिनट. फार्मूला लेने से पहले डीसी अप्लाई करने से पहले पूरा जो है सेट कर लेके फिर उसके बाद डीसी अप्लाई करना. इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले सेटअप क्या है अपना, सबसे पहले सेटअप क्या करना अपने को, कौन सा वीक में होना है. देखो फार्म जैसा निकालते कि क्या है अपने को ऑप्शन आ रहा, अभी तक ऑप्शन आया यार कुछ नहीं है. नहीं आया तो, क्योंकि जो है लाइन आइटम को पूरा कंट्रोल कर देता वो सबमिट करते किस. तो उसके अंदर क्या है, वीक 2, 3, 4 के अंदर जो है सबमिट परचेस ऑर्डर रिक्वेस्ट है एंड ओवरराइड सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट के लिए वीक 3 एंड 4 के लिए चेक बॉक्सेस दे दो. वीक 3 एंड ओवरराइड सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट के लिए वीक 3 एंड 4 दे दो, ये निकाल दो.
ये हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका, ओवरराइड शिपिंग मेथड के लिए क्या है, सिर्फ वीक 4 के फोर्थ अंदर शिपिंग मेथड टिक कर दो। ओवरराइड शिपिंग मेथड क्या है, वीक 4 के अंदर। ये हो गया। अब जो है इसको इसको आप अप्लाई करो DCA। सबसे पहले अपना मेन लाइन आइटम किसको कंट्रोल करना है, वी नीड टू सबमिट परचेस ऑर्डर रिक्वेस्ट, सबमिट परचेस ऑर्डर रिक्वेस्ट। नेक्स्ट override amount, next we need to control override amount, we need to override the amount, override amount, yes fine. Override shipping, override method, shipping method, override shipping method fine. So यहाँ पे आप देखो यार, अब फार्मूला कैसा काम कर रहा देखो। अपने को जो है ओवरराइड अमाउंट के लिए जो है ये 2 ट्रू रहा तो ट्रू है, ठीक है ना। ये 2 ट्रू, सबमिट परचेस ऑर्डर रिक्वेस्ट टाइम, ओवरराइड सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट 2 ट्रू रहा तो ट्रू है। यहाँ पे आप कुछ एडिट कर सकते हैं, यानी ब्लू इंक में है, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं आप, ओवरराइड कर सकते हैं अमाउंट। ये सेल में अगर मैं लिख सकता हूँ यार, ये सेल में कुछ लिख सकता हूँ मैं, इज इट पॉसिबल? हाँ सर, हाँ सर। आपको ऑप्शन ही नहीं देता, ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं देता बिल्कुल। तो उसके अंदर क्यों ये लाइन आइटम के अंदर ऑलरेडी अपन फार्मूला सेट करें, क्या फार्मूला सेट करें ये लाइन आइटम के लिए, ओवरराइड अमाउंट के लिए मेरा सबमिट परचेस ऑर्डर रिक्वेस्ट ट्रू रहना, ओवरराइड सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट ट्रू रहना, देन ओनली आई शुड राइट हियर until and unless these two are true we can't do anything, ठीक है ना। इसके लिए जो है यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिख सक रहे, तो इसके लिए क्या एडिट क्या कर रहे हैं लोग, 1000 and 1500, 1000 and 1500 डालो, 1000 1500 यस वी हैव कंप्लीटेड दिस वन। सो यहाँ पे जो है एडिट कर सके हम, एडिट करके जो है ये भी जो है इसके अंदर है, और यहाँ पे भी, यहाँ पे दोनों ट्रू रहा तो ही हम एडिट कर सक रहे। ये हो गया, ये भी एडिट कर सके, ये भी एडिट कर सके, ये पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट क्या है आपका, और एक लाइन आइटम ये चेक करेंगे, ओवरराइड मेथड जो है कब ओवरराइड कर सक रहे हैं हम, ये देखो। ओवरराइड के लिए कंडीशन क्या है यार अपना, मैं यहाँ पे जो है एक जगह ब्लू आया, यहाँ पे भी ट्राई कर दूँ मैं, यहाँ पे ओवरराइड चेंज करेंगे सोच रहा हूँ। रोड से जो है, रोड से अगर मेरा शिपिंग मेथड है, मैं यहाँ भी एयर से करेंगे सोच रहा हूँ, यहाँ पे नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा यार? ओवरराइड शिपिंग मेथड क्लिक करके नहीं, मैं यहाँ पे टिक कर रहा था, क्या होता फिर? यहाँ पे अगर टिक कर रहा तो क्या होता? यू कैन एडिट, अनेबल हो जाता है वो। एडिटिंग ऑप्शन दे देता हूँ। क्यों? मेरा कंडीशन क्या है ये लाइन आइटम के लिए, ये लाइन आइटम के लिए कंडीशन क्या है, सबमिट परचेस ऑर्डर रिक्वेस्ट ट्रू रहना, ये भी ट्रू रहना, देन इट विल हैपन्स, ठीक है ना। मैं यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे एक जगह मैं टिक करा, एग्जाम्पल टिक करा, यहाँ पे आप जैसा टिक करते कि क्या होता, अपने को ऑप्शन दे देता,
ठीक है ना। ये जो है मेन अपना कंडीशन है। इसके अंदर जो है जिधर जिधर हम टिक करते कि अपने को ऑप्शन देता, क्योंकि ये लाइन आइटम के वास्ते हम क्या करें, फार्मूला लिखे। ठीक है ना। फार्मूला क्या लिखे, फार्मूला क्या लिखे यार हम ओवरहेड शिपिंग मेथड के लिए एक्सेस ड्राइवर मॉड्यूल के अंदर शिपिंग मेथड का फार्मूला क्या लिखे हम, इसके अंदर क्या लिखे ओवरहेड शिपिंग मेथड के लिए डायरेक्ट जो है ओवरहेड शिपिंग मेथड। ओवरहेड शिपिंग मेथड एक ही देख रहा, दो नहीं देख रहे यहाँ पे। ठीक है ना। तो ओवरहेड शिपिंग मेथड रहा तो सीधा सीधा इन ले लेता, दो नहीं देख रहा, खाली एक ही देख रहा। यहाँ पे जो है आपको एक इसके लिए कंडीशन 2 है अपने को, फर्स्ट वाले के लिए कंडीशन 2 है, इसके लिए 2 कंडीशन रहा तो ये ट्रू है, इसके लिए कंडीशन एक ही है। यहाँ टिक करो, यहाँ टिक करो, आपको आ जाता, एक ही कंडीशन है। सीधा सीधा मॉड्यूल के अंदर देखता, अपने ट्रू दे देता, यानी जहाँ जहाँ टिक रहता वहाँ पे सीधा सीधा वो कर सकते। इसके लिए कंडीशन क्या है, 2 कंडीशन है। ओवरहेड अमाउंट के लिए क्या है अपना कंडीशन 2 है, यानी ये भी ट्रू रहना, ये भी ट्रू रहना। एग्जाम्पल जो है मैं यहाँ पे एक जगह टिक करा एग्जाम्पल, तो यहाँ पे अगर ओवरहेड करने के वास्ते ट्राई करें तो क्या होता क्या ओवरहेड अमाउंट के लिए, ओवरहेड अमाउंट के लिए होता यार, नो सर। कई को नहीं हो रहा यहाँ पे ऊपर ट्रू Yes. है, सबमिट परचेस ऑर्डर जी। भी ट्रू रहना, ये 2 ट्रू रहा तो यहाँ पे ट्रू रहता। ठीक है। Yeah. तो ऐसा है, तो इसके लिए यहाँ पे ट्रू नहीं हो रहा। ये है, ये अपना जो है डायनेमिक सेल एक्सेस कैसा कंट्रोल करते, एक एक्सेस ड्राइवर मॉड्यूल क्रिएट करते, वो मॉड्यूल को फार्मूला लिखते, वो फार्मूला लिख के क्या करते, वो फार्मूला के अंदर कैसा लिखते हम, वो फार्मूला के अपने को जो कंडीशन होना है वहाँ पे लिखते। ठीक है ना यार, जो कंडीशन होना है वहाँ पे लिख के वो कंडीशन के हिसाब से वो लाइन आइटम लेके आके अपने ये लाइन जिसको कंट्रोल करना है वो कंट्रोल इसके अंदर डालते, जो लाइन आइटम को कंट्रोल करना है वहाँ पे जो है डाल देते। यानी ये इसके अंदर फार्मूला लिख के जो है, ये फार्मूला लिखने से अपने को जो जो कंडीशन डाले ओवरहेड अमाउंट के लिए, वो कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो जो है आपको क्या करता है यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन दे देता। ठीक है ना यार, कैसा हो रहा, अभी कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं इसके अंदर। डायनेमिक सेल एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। हर इंटरव्यू पूछता, हर इंटरव्यूअर जो है डायनेमिक सेल एक्सेस क्या है, उसके लिए कैसा यूज़ कर रहे हैं आप, जो है उसको बहुत ये सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है अनाप्लान के अंदर। यानी आपको कैसा जो है मॉड्यूल को कंट्रोल करना है, डेटा को कैसा कंट्रोल, दूसरे लोग जो है कंट्रोल नहीं एक्सेस नहीं करे ऐसा, उसको कैसा आप कंट्रोल कर सकते। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायनामिक सेल एक्सेस, तो इसके लिए हर इंटरव्यूअर पूछता। ठीक है ना यार। सो इसके अंदर कुछ डाउट है, डायनामिक सेल एक्सेस कैसा यूज़ कर रहे हैं हम, डायनेमिक सेल एक्सेस कैसा यूज़ कर रहे हैं हम। लाइन आइटम्स क्रिएट कर लिए, डायमेंशन दे दिए इसको, टाइम एंड P3 SKU डायमेंशन दे के उसके हिसाब से क्या करें यार हम, ये जो है मॉड्यूल क्रिएट कर लेके इसके अंदर फार्मूला इंसर्ट करें लाइन आइटम्स को, कंडीशन कौन से हिसाब से अपने को परमिशन देना है नहीं देना है, ये लाइन आइटम्स को फार्मूला से इंसर्ट करें। सेम लाइन आइटम्स लेके आके क्या करें, ये फार्मूलाज जो है जो हम क्रिएट कर लिए लाइन आइटम्स, वो लाइन आइटम्स को लेके आके अपने जो है जो लाइन आइटम को कंट्रोल करना है वहाँ पे दे दिए। देने से क्या हो रहा, वो लाइन आइटम कंट्रोल में आ रहा अपने को। ठीक है ना यार। इन्वेंट्री ऑर्डरिंग मॉड्यूल के अंदर एक्सेस ड्राइवर मॉड्यूल क्रिएट करके इन्वेंट्री ऑर्डरिंग मॉड्यूल के अंदर डाल दिए, वो लाइन आइटम कौन सा लाइन आइटम कंट्रोल करना है उसको जो है ब्लूप्रिंट व्यू में जाके, ब्लूप्रिंट व्यू में गए और इसके अंदर रीड राइट एक्सेस ड्राइवर के अंदर जाके हम क्या करें, यहाँ पे राइट एक्सेस ड्राइवर के अंदर जो है जाके दिए। देने से क्या हुआ हमारे को, ये लाइन आइटम को हम कंट्रोल कर सक रहे। ये सबमिट परचेस ऑर्डर रिक्वेस्ट
ओवरराइड अमाउंट एंड ओवरराइड शिपिंग मेथड तीनों को भी कंट्रोल कर सक रहे। क्यों बोले तो और यहाँ पे जो है फार्मूला सेट कर दिया अपन, ये मॉड्यूल के एक्सेस ड्राइवर मॉड्यूल के अंदर जो फार्मूले सेट करे वो फार्मूले के हिसाब से लाइन आइटम्स को कंट्रोल कर रहे। ठीक है ना, क्लियर है ना? Yes, sir. एक्टिविटीज कंप्लीट करो यार, आज ही कंप्लीट करो एक्टिविटीज, जब भी जो है आप लोगों को समझ में आता, नहीं तो फिर समझ में नहीं आता। ये थोड़ा जो है